friends, welcome to my channel Science on Earth. The topic of today is sources of energy, and we are going to discuss in detail. And this sources of energy, as this topic is very big, so I have divided it into 5 parts, and today we will discuss part 1 in detail. Now, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And if you subscribe my channel, then you will get all the new videos that are coming. And you will get 3 videos per week. And days are Monday, Wednesday, and Friday at 6 p.m. Means in the evening. So on these days, you will get 3 videos per week, sorry. So please like, share and subscribe to my channel. So today we will discuss about sources of energy, and this is the part 1. Now we need energy for everyday activities. Our activities are done only with the help of energy. If we have energy, then we can do all our routine work, our everyday activities. So for all that we require energy, and our everyday activities, they require and use energy in so many forms. So hence energy is very essential for our day-to-day work and life cycles. Now there are certain sources of energy that give us our energy for our daily use. If we define this source of energy, then a source of energy is that which can provide energy in a convenient way for long period of time. So in uh, around us, there are so many sources of energy, and these sources of energy, they provide energy in different forms, and we get this energy, and with the help of this energy we do our डे टू डे एक्टिविटीज. जो भी हम अपनी लाइफ में जो हमारी एक्टिविटीज हैं, इधर उधर वॉकिंग, रनिंग, वर्किंग, ये और भी जो एक्टिविटीज हैं, उन सारी एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू एनी वर्क. सो वी नीड एनर्जी फॉर ईच एंड एवरी work in our life. So as for example, for cooking food, we can cook food with the help of heat. कुकिंग के लिए हमें हीट चाहिए, और हीट कहाँ से मिलती है? जो हमारी कुकिंग गैस है वो हमें हीट देती है, या और जो जितने भी सोर्सेज हैं, वो भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हीट देते हैं, और वो जो हीट है, दैट हीट हेल्प्स अस इन कुकिंग आवर फूड. For running car, we need petrol. So this petrol, it also comes from a source of energy. Lighting bulbs need electricity. Electricity is also a form of energy. For running electric trains, uh, today there are so many trains, almost all the trains, they are running with the help of electricity. So this electricity is also a type of energy. For running factory machines, in one factory, there are thousands of machines, hundreds or thousands, and all those machines, they are running with the help of electricity. So we need electricity in our day-to-day life everywhere. For radio and television, for running radio and television, we need electricity. Everything depends upon energy. अगर हम अपनी पूरी लाइफ को देखते हैं, तो हर जो एक हमारा मोमेंट है उसमें एनर्जी का यूज है. विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू एनी वर्क. और वो जो एनर्जी है वो हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करते हैं. कहीं पे हीट एनर्जी यूज करते हैं, जैसे कुकिंग के लिए हो गया, या
कहीं पे इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी तो पूरा दिन ही काम आती है बहुत सारी चीजों को चलाने के लिए। तो ये जो फॉर्म्स हैं एनर्जी के, तो ये इनके बेस पे ही हमारा सर्वाइवल है। ये अगर एनर्जी नहीं हो तो हम सरवाइव करना हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, दे आर रिक्वायर्ड फॉर आवर डे टू डे लाइफ एंड दे आर नीडेड। सो देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो सोर्सेज हैं वो भी बहुत सारे हैं, तरह तरह के सोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज। और उनसे जो एनर्जी हमें मिलती है उसके भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में हमें मिलती है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टेंटली टेक इन एंड रिलीज एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हर समय एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में लेते रहते हैं। और जो आफ्टर मेंटेनेंस, मतलब ये जो एनर्जी वो लेते हैं वो अपनी मेंटेनेंस के लिए लेते हैं बॉडी की। और जो एक्स्ट्रा उसके बाद बचती है एनर्जी, दैट इज रिलीज्ड इन एनवायरमेंट। तो organisms, they take energy for their maintenance, and rest of the energy uh, that is released in environment. The earth's climate and ecosystems processes are driven primarily by radiant energy from the sun. अब ये जो एनर्जी है, अगर हम किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, हीट एनर्जी हम वुड से लेते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सब कुछ है। तो इसका जो एक बेस है, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है सन। सन की जो एनर्जी है वो ही प्लांट्स ने ली और फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस करने के बाद उनके अंदर फूड एनर्जी केमिकल फॉर्म में उसमें डिपॉजिट हुई। प्लांट्स ने बहुत जल्दी ग्रो किया और एक ट्री के फॉर्म में आ गए। वो जो वुड है वो हमारे काम आई आगे एनर्जी लेने के लिए। तो ये जो इसका बेस है ना, जहां से एनर्जी ये शुरू हुई, स्टार्ट हुई, दैट इज द सन। वहीं से सब कुछ हो रहा है। द एनर्जी इंडस्ट्री provides the energy required for human civilization to function, which it obtains from energy. So all the living organisms, they constantly take in and release energy, and the earth's climate and ecosystem processes are driven by the radiant energy that is taken from sun. So uh, is it clear? For our survival, we need energy, and without energy, we cannot survive, because all our day-to-day activities, they are dependent on energy. आप मॉर्निंग से शुरू करो और नाइट तक जितनी एक्टिविटीज हैं हमारी, cooking, running cars, lighting bulbs, for running electric trains, running factory machines, running radio and television functioning, everything depends upon energy. And without energy, we can't do anything. And so our life is totally dependent on energy. And the sources from which we gain energy, these are called as source of energy, and they provide us energy in a convenient way for long period of time. Then there are categories of energy resources. Sources of energy can be classified broadly in two main categories. जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी tends to deplete over time. As the word indicates, non-renewable,
it means they cannot be renewed again. So ये जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये धीरे धीरे ये डिक्रीज होते जाते हैं, क्योंकि इनको ये दोबारा नहीं बनते हैं, और एक बार इनको जब यूज कर लिया हमने तो इनकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और जब कोई चीज नई प्रिपेयर नहीं हो रही, नई बन नहीं रही है, और जो उसकी डिपॉजिटेड क्वांटिटी है, जो उसकी डिपॉजिट हुई हुई क्वांटिटी है, उसे हम यूज करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं बहुत ही फास्ट स्पीड से, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होगी। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, तो इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, ये मतलब रिन्यू नहीं होते हैं। ये जो भी हमारे पास इसका स्टॉक है, जो जितने इस डिपॉजिट्स हैं, और वही हैं हमारे पास, और उनको हम जब यूज करते जाते हैं, यूज करते जाते हैं, तो इनकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि ये रिन्यू नहीं हो रहे, ये पूरे इकोसिस्टम में बन नहीं रहे हैं, नया प्रिपरेशन इनका नहीं हो रहा है, तो ये डिप्लीट होते जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। तो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दे टेंड टू डिप्लीट ओवर टाइम। Non-renewable sources are natural sources that cannot be replenished as quickly as they are consumed. अब हम इन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से को यूज करते जा रहे हैं, और हमारी जो यूज करने की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा है कि हम जितनी क्वांटिटी इनकी यूज कर रहे हैं, वो उतनी क्वांटिटी ये दोबारा नहीं बन रही है, प्रिपेयर नहीं हो पा रही है इनकी। ये बहुत लंबे टाइम में थोड़े बहुत डिपॉजिट होते हैं, तो जो हमारी स्पीड है ना इनको यूज करने की, वो बहुत ज्यादा है, और इनके बनने की स्पीड बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो इनका जो एक डिप्लीशन है, जो ये कम होते जाएंगे, तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि ये कम हो जाएंगे। सो these sources, they are called as renewable, non renewable, because they can't be renewed. So these are non renewable sources. तो ये जो sources हैं हमारे sources of energy, ये क्योंकि ये डिप्लीट होते जाते हैं और नए नहीं बनते इतनी जल्दी, इसलिए हम इनको बहुत केयरफुली यूज करें तो बहुत अच्छा है। और ये बहुत अगर स्पीड से इनको यूज करेंगे, then they will be finished and we will not get any energy from these sources. Non-renewable sources of energy includes fossil fuels such as coal, natural gas, and petroleum, etc., which are formed from the remains of ancient plants and animals. When the dead plants and dead animals, when they are buried inside the earth, then they are converted into fossil fuels. जब इनको, ये जो प्लांट्स हैं वो किसी भी फॉरेस्ट में, ये डेड प्लांट्स ये गिरे हुए रहते हैं उस अर्थ के ऊपर, और वहीं पे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो डेड हो जाते हैं, तो उनके ऊपर जो उसकी जो लेयर्स हैं सैंड की या सॉइल की लेयर्स ऊपर डिपॉजिट होती जाती हैं, और वो बहुत नीचे बरी हो जाते हैं। देन these dead materials, they are totally cut from oxygen. जो हमारी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उससे ये जो डेड बॉडीज हैं उसकी, प्लांट की और एनिमल की, ये इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि इसके ऊपर जो सॉइल और सैंड की जो लेयर्स हैं तो वो डिपॉजिट होती जाती हैं और वो नीचे दब जाते हैं, एंड दे आर टोटली अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और जब अलग हो जाते हैं तो उसके बाद इनके ऊपर जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, दे स्टार्ट वर्किंग। ये
पहले के वीडियोस में मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेल में समझाए थे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे क्लीन द एटमॉस्फेयर। ये जो भी डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स के, तो उनके ऊपर ये सरवाइव करते हैं एंड उसको ये बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो ये जो माइक्रोब्स हैं दे स्टार्ट वर्किंग and that remains of the plants and animals, they are converted into fossil fuels. fossil fuels कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं ऑफ एनर्जी, दे आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ। इनको अर्थ के नीचे से इसीलिए निकालना पड़ता है खोद के, क्योंकि ये इनका जो फॉर्मेशन है, द फॉर्मेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस दैट इज इनसाइड द अर्थ, उसके अंदर ही ये बनते हैं, तो इसलिए उनको निकालना भी नीचे से ही पड़ेगा। सो दे आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ। यूरेनियम इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स that is used to create heat and electricity in nuclear power plants. यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसका यूज होता है और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो ये भी नॉन रिन्यूएबल है। इसका एक लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास। These sources of energy depletes over the period of time as far as, and example, if coal is exhausted, then it will not be available for our use again. That is why non-renewable sources of energy are also known as exhaustible sources of energy. Exhaustible means कि जो एग्जॉस्ट हो गए, खत्म होंगे किसी टाइम पे आके, दे विल एग्जॉस्ट, खत्म हो जाएंगे वो, तो इनको एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। कोल, उसका जितना एक क्वांटिटी है अर्थ के नीचे, बिकॉज दिस इज फॉसिल फ्यूल, तो जितनी क्वांटिटी है वो हमारे लिए अवेलेबल है और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको बहुत ही वाइजली यूज करें, वेस्ट ना करें उसको, और ताकि वो जो स्टॉक है वो आगे लंबे टाइम तक काम में आ सके और उस पे हम सरवाइव कर सकें। तो हमें ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, तो इसमें जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, तो इनका बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए और इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जितना हम इनको प्रिजर्व करेंगे, ध्यान से रखेंगे, then they will do for a very long time. So these sources of energy, non-renewable, they are also called as exhaustible sources of energy. Now other type is renewable, that can be renewed. Meaning इसका क्या हुआ renewable, कि वो दोबारा बन सकता है। And its definition is, the sources of energy are those sources of energy which are inexhaustible, जो exhaust नहीं होंगे कभी। These are being produced continuously in nature. Renewable resources are natural resources that can replenish themselves or continue to exist even when being used. They can be converted into clean usable energy. अब इन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको अगर हम यूज करते चले जाएं, तो ये साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ ये बनते भी जाते हैं एनवायरनमेंट में नया। जैसे कि अगर हम वुड यूज कर रहे हैं, वुड इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, because if trees are cut from the forest for obtaining wood, then more trees can be grown in the course of time. अब ये wood जो हम forest से ले लेते हैं, तो वो बहुत चीजों में काम आती है, ये एज ए फ्यूल यूज करते हैं, बहुत सी चीजों में आती है काम ये। तो ये तो चीज है कि अगर हम एक
ट्री किसी उसको कट करते हैं किसी ट्री को और उसकी जगह पे कोई सैपलिंग प्लांट करते हैं, एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, तो वो जो प्लांट है इट टेक्स नॉट लेस देन 15 years टू ग्रो। उसके एक ट्री बनने में इतना लंबा टाइम लगता है, सो मैनी इयर्स। और वो जो ट्री हम कट कर रहे हैं उसको कट करना में बहुत कम टाइम लगता है। तो ये रिन्यूएबल सोर्स है ये एनर्जी का, जो दोबारा बन जाएगा। वो जो आपने सैपलिंग लगाई है, दैट सैपलिंग विल ग्रो इनटू ए बिग ट्री। ये बड़ा एक ट्री बन जाएगा उससे। लेकिन जो दोनों के टाइमिंग्स को आप कंपेयर करो कि एक ट्री के ग्रो होने का टाइम और एक ट्री को कट करके यूज करने का टाइम, तो इनमें बहुत डिफरेंस है। तो ये जो रिन्यूएबल हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी वुड, तो ये रिन्यूएबल है, दोबारा ट्रीज ग्रो हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए इसके यूज में, क्योंकि ये ग्रो होने में बहुत टाइम लेता है। देन सोलर एनर्जी, द मोस्ट abundant energy resource which can be uh, in which is which works in cloudy weather also. So this energy, solar energy, this is very useful. Now these days, solar energy is used in so many ways. ये जो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे एक प्लान दी है जो डोमेस्टिक यूज के लिए, तो उसमें लोगों ने सोलर ये सेल्स लगाए हैं अपनी टेरेस पे, और उससे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और वो जो सोलर एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप, और उसको यूज कर रहे हैं और सेव भी हो रही है साइमल्टेनियसली। तो ये जो सोलर एनर्जी है ये ये भी बहुत यूजफुल है। देन विंड एनर्जी, अ रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शन, दिस इज विंड एनर्जी ऑल्सो। विंड एनर्जी से क्या होता है कि बहुत सारे ओपन जो स्पेसेस हैं, फील्ड्स, वहां पे कुछ एक ऐसे व्हील से लगा दिए जाते हैं, या एक जैसे फैंस के ब्लेड्स होते हैं ना, जो हमारे फैंस होते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए, उसी तरह के ब्लेड्स होते हैं, और विंड मिल कहलाती है वो। तो उससे जब वो घूमता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी यूज होती है बहुत बड़ी बड़ी कुछ मशीनों को चलाने के लिए भी काम में आ जाती है। तो सो विंड एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड। अगर हवा चलेगी तो वो व्हील जो है वो रोटेट करेगा और उसके रोटेशन से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। देन हाइड्रो पावर, a renewable energy source, this is also a renewable energy source. Hydro power, hydro means water, तो ओशन एनर्जी इसमें आ गई। जो उसकी वेव्स होती हैं, ओशन करंट्स हैं, तो ये सब इनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो डिफरेंट चीजों के लिए काम में लेते हैं। एनर्जी ऑफ टाइड्स, टाइड्स जो आते हैं सी के अंदर, वो वो टाइड्स भी हम उनको भी यूज कर लेते हैं किस चीज में, टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये जो जितने हैं बहुत सारे, एक इतने सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। दीज सोर्स, these resources can be used over and over again, but wood is a renewable source of energy, but trees take so many years to grow, so we should be careful. तो ये इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को वेस्ट ना करें। So we should keep control on the cutting of trees as to maintain balance of nature and to also protect forest and topsoil from depletion. इसमें कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो बहुत कम करना चाहिए, जब बहुत ही उसकी रिक्वायरमेंट हो तब।
Therefore, use of wood is as a energy resource is not a wise decision. तो ये क्योंकि उसके ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है. Then, if we want to choose a source of energy, अगर हमें ये देखना है कि कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए बेस्ट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, देन हाउ टू चूज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, कैसे उसको सिलेक्ट करेंगे, एक सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा हमारे लिए अच्छा है. तो उसमें आपको ये देखना है कि द सोर्स शुड बी चीप एंड कॉस्ट लेस. ये जो हमारी मनी की सेविंग के लिए ये जरूरी है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारे डेली यूज के लिए चाहिए हमें, वो चीप होना चाहिए, उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए. देन source should be able to do more amount of work in per unit mass of the resource. अब कोई दो अगर सोर्स हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसमें कौन सा हमें ज्यादा हमारे काम आ रहा है वो हम कैसे कंपेयर करेंगे. दोनों सोर्सेस का पर यूनिट मास ले लेंगे. मींस 1 ग्राम पर यूनिट मास का मतलब 1 ग्राम 1 किलोग्राम यूनिट मास वो ले लिया और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करी. तो जिसमें ज्यादा अमाउंट आएगा, अमाउंट ऑफ वर्क, वो हमारे लिए वो सोर्स ऑफ एनर्जी बेनिफिशियल होगा. तो इस बेस पे हमें देखेंगे कि सोर्स शुड बी एबल टू डू more amount of work in per unit mass of the resources. Then next, source should be easily available. अब जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमें मॉर्निंग टू नाइट चाहिए, हर वक्त चाहिए, हर टाइम. अब अगर कोई सोर्स इजीली अवेलेबल नहीं है तो उसको कैसे हम लेंगे या उसको कैसे लाएंगे. दैट सोर्स शुड बी इजीली अवेलेबल. नेक्स्ट, विच इज सेफ टू यूज. उसके यूज में हमें सेफ्टी भी देखनी है अपनी, कि किसी तरह से हमें उसके यूज में कोई हार्म ना हो जाए, किसी तरीके का वो यूज में सेफ है कि नहीं है वो सोर्स, ये देखना है. और सोर्स शुड नॉट कॉज और कॉज लीस्ट एनवायरमेंटल डैमेज एज पॉसिबल. एनवायरमेंटल डैमेज ये मतलब है कि अब कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे हमारा तो काम हो गया, लेकिन उससे कुछ ऐसी गैसेस या स्मोक वगैरह निकल रहा है जो एनवायरनमेंट में जाके मिल जाता है और पॉल्यूशन क्रिएट करता है. तो एक तरफ तो उससे हमें बेनिफिट हुआ, फायदा, और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट का डैमेज हुआ, वो खराब हो गया. तो ये जो चीज है इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा. सोर्स शुड बी इजी टू स्टोर. हमें अपने किसी घर में उसको स्टोर करना है तो उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं या नहीं ये देखना होगा. अ सोर्स शुड बी सेफ टू हैंडल एंड दैट सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी सेफ. अ सोर्स शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट. अब उसे लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, सो इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी सिलेक्ट हम कर सकते हैं अपने लिए. देन वी विल डिस्कस फ्यूल्स. Fuels are materials which are burnt to produce heat energy and power. अब ये जो फ्यूल्स होते हैं, इन मटेरियल्स को जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो इनसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और पावर भी प्रोड्यूस होती है. We use fuels as a source of energy in our day-to-day life. A variety of fuels are available to use. Hence, we have to decide which fuel is the best for our purpose. Now, these fuels are wood, coal, cooking gas, CNG, petroleum, diesel and kerosene.
So all these things we use our in our daily life. इसमें हम सब कुछ यूज करते हैं. वुड भी काम आती है, कोल काम आता है बहुत जगह पे, कुकिंग गैस, ये तो हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गई है. एलपीजी, सीएनजी के साथ हम अपने जितने भी व्हीकल्स हैं वो आजकल मैक्सिमम सीएनजी पे चल रहे हैं, क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो इनसे लीस्ट होता है. पेट्रोलियम, डीजल एंड केरोसिन, ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी. तो अब इसमें अगर हमें चूज करना हो कि कौन सा जो फ्यूल है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो उसमें एक टर्म होती है कैलोरीफिक वैल्यू. This term is to understand the characteristics of a good fuel. We should understand a term calorific value. ये हमें पहले इसको समझना होगा. All the fuels on burning produce energy. जो फ्यूल्स हैं उनको जब हम बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है. All fuels produce different amount of heat. Produced is known as its calorific value. अब जितने भी फ्यूल्स हैं उनको अगर हम बर्न करेंगे सेपरेटली, अलग अलग, तो उनका जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो सब में डिफरेंट होगा. वो अलग अलग क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और डिफरेंट अमाउंट उसका हीट का वो प्रोड्यूस होगा. तो ये कैलोरीफिक वैल्यू उनकी देखी जाती है कि किस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, किस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कम है, तो कौन सा फ्यूल हमारे लिए बेनिफिशियल होगा यूज में. अब ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है, ये क्या चीज है? वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ हीट produced by burning 1 gram of fuel completely is known as its calorific value. अगर हम 1 ग्राम फ्यूल ले लें कोई भी और उसको बर्न करें, 1 ग्राम फ्यूल को बर्न किया जाए, और लेकिन उसकी जो कंप्लीट बर्निंग होनी चाहिए, तो उससे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो वो उसकी कैलोरीफिक, जितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है. मतलब 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने से जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसको मेजर कर लेंगे, और जितनी वो होगी वो इस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है. अब जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारे लिए बेनिफिशियल है. मतलब 1 ग्राम हमने अलग अलग बहुत सारे फ्यूल्स की क्वांटिटी ली और उनको बर्न किया. अब उनमें 1 ग्राम क्वांटिटी सबकी इक्वल है, लेकिन जिसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है वो वाला फ्यूल हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया. तो कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा वाला जो फ्यूल होगा दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस. The unit of measuring calorific value is kilojoules per gram. This is the unit for measuring the calorific value. Example, we can take hydrogen. Hydrogen has the highest calorific value, and the calorific value of hydrogen is 150 kilojoules per gram. मतलब हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा है. ड्यू टू इट्स हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, हाइड्रोजन इज ए गुड फ्यूल. तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि उससे ज्यादा हीट मिल रही है हमें. अब ये जो फ्यूल्स हैं इसमें इनको जब बर्न करते हैं हम, तो उसमें एक और टर्म आती है, उसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर. Now another thing, we need to know that a fuel has to be burnt to obtain heat energy. Fuel को हम किस लिए बर्न करते हैं? हीट एनर्जी लेने के लिए. हीट एनर्जी जब लेने के लिए उसको बर्न करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब किसी चीज को हीट करते हैं, एज फॉर एग्जांपल वुड,
को हीट किया तो वो पहले एकदम से बर्निंग नहीं स्टार्ट होती, वो धीरे धीरे बर्न होती है। और ज्यादा हीट देंगे और ज्यादा हीट देंगे तब जाके कहीं वो बर्निंग उसकी स्टार्ट होती है। तो एक टेम्परेचर तक किसी भी फ्यूल को हीट करने के बाद उसकी बर्निंग होती है, एक टेम्परेचर मिनिमम। तो अब ये हुआ कि नाउ when we heat a fuel, then it reaches a minimum temperature. The minimum temperature to which a fuel must be heated so that it may catch fire and start burning is known as its ignition temperature. मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर तक किसी फ्यूल को हीट करने पे वो फायर कैच कर लेता है और स्टार्ट हो जाता है बर्न होना, वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। अब इसके बाद एक आइडियल जो फ्यूल, बहुत अच्छा फ्यूल हमारे लिए, तो वो किन फैक्टर्स पे डिसाइड करेंगे हम। एक तो देखेंगे उसकी अवेलेबिलिटी, कि इजीली अवेलेबल मार्केट में है कि नहीं है। कॉस्ट देखेंगे, इट शुड बी अफोर्डेबल, जिसको हम अफोर्ड कर सकते हो। देन इग्निशन टेम्परेचर, अब ये जो इग्निशन टेम्परेचर अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये जिसका कम होगा, मतलब थोड़ी सी हीट देने पे ही जो बर्न होने लग जाएगा, दैट फ्यूल विल बी वेरी गुड। एनर्जी रिलीज देखना है हमें, इट शुड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो ज्यादा एनर्जी दे, इट मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए उसकी। देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस एनवायरमेंट में, कोई भी हार्मफुल चीजें ना जाएं उसकी बर्निंग से, और हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला हो। देन कंबशन रेट, इट शुड बर्न इजिली इन द एयर एट ए मॉडरेट रेट। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस मीन्स इट शुड हैव ए लो एज पॉसिबल कंटेंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक फ्यूल को हमने बर्न किया, अब उसमें अगर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं तो वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है। और अगर नॉन वॉलेटाइल होगा कुछ पार्ट, तो वो उसमें एज ए रिमेन वहां पे बच जाएगा, तो वो एक पॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस हो, देन कम से कम हो उसमें। बाई प्रोडक्ट्स, देयर शुड बी नो पॉइजनस और रेजिड्यू बाई प्रोडक्ट ऑन कंबशन, कोई भी पॉइजनस कुछ उसमें प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन जिसका इजी हो, स्टोरेज इजी हो। तो ये सारे फैक्टर्स देख के हम अपने यूज के लिए कोई एक अच्छा फ्यूल डिसाइड कर सकते हैं। और ये जो इनका जो यूज है फ्यूल्स का, सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, ये हमको बहुत ध्यान से करना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल और वेस्ट नहीं होने चाहिए ये। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा, पार्ट 2 में, and this will continue in 5 videos including this। ये 4 वीडियोस और होंगे तब ये टॉपिक कंप्लीट होगा। So please don't forget to see the next videos, the coming 4 videos, and they will complete this topic. And please subscribe my channel, and thank you very much.